Good morning, student. This is the first video of chapter 2, standard 12, subject statistic part 2. In this video, we're going to start the new chapter random variable and discrete probability and distribution. Right. So these are the two topics which are discussed in this chapter. Getting? Now, content. What the content in this? There are it the random variable, discrete and continuous, discrete probability and distribution, right, and binomial probability and distribution, right. The three topics we can see in this chapter. Now first one, we can see the random variable, and in random variable we can see the discrete and continuous random variable, right. Now we can see what is random variable. we we have studies about the random experiment, right. Random experiment in last chapter. We have study about the random experiment, sample space and probability in the chapter of probability, right. In first chapter probability we can see this topic, random experiment and sample space. Getting? In this chapter we shall study random variable and discrete probability distribution, right. तो इस चैप्टर में हम रैंडम वेरिएबल के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट, विद एग्जांपल्स एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. First of all, we shall define random variable and then we will understand it by illustration, right. पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन के जरिए हम समझेंगे. Now random variable definition. Let's u be a sample space, right. Normally first chapter में u sample space हमेशा हम कहते थे, right. तो let's u be a sample space of a random experiment. Every elements of u, right, every elements of u needs not always be a number. Getting? However, we wish to assign a specified number to each outcomes, right. We wish to assign a specified number to each outcomes. Getting? A function associating a real number with each outcome of u is called random variable, right. A function associating a real number with each outcome is called random variable. It is denoted by x, right. हम x शायद इसको डिनोट मतलब बता सकते हैं, सिंबल्स को दे सकते हैं. That is, a random variable based on the sample space u is denoted by this sign. Getting? Now some example is also there below. For example, the number of heads in the tossing an unbased coin 3 times. Second, the number of accident during a week in a city. Third, the weight of the person in kilogram. The maximum temperature of a day at the particular place in Celsius, right. So some of the examples we can see, right, of random variable. Now we can use the illustration. Now let us understand the concept of random variable by some illustration. Ready? Now see the illustration. A balanced dice is tossed once, right. A balanced dice is tossed once only. If the number observed on the dice, right, अब जो number हमें dice पे दिखेगा, right, if the number observed in the dice is denoted by small u, right, जो number हमें dice पे दिखेगा उसको हम small u से denote करेंगे. Then the element of sample space u, then the element of sample space u of the random experiment, of this experiment can be shown as a notation of a set as follow, right. तो उसके बाद हम इस तरह उसको लिखेंगे, right. तो u is equal to small u is equal to 1 2 3 4 5 6. गेटिंग? तो 1 2 3 4 5 6 है हमारा सैम्पल स्पेस है, राइट. और हम इसको एक बार टॉस करेंगे डाइस को, तो उसमें जो भी ऊपर नंबर आएगा उसको हम u से डिनोट करेंगे. गेटिंग? If we associate a real number x with the element u of the sample space by x small u is equal to the number of octane on a dice, we can write x small bracket में small u is equal to 1 2 3 4 5 6, right.
बिकॉज नंबर इज नॉट गिवन ईयर ऑन द डाइस, राइट, जो डाइस पे नंबर था यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम 1 2 3 4 5 6 को पकड़ के चल रहे हैं. गेटिंग. नाउ thus the variable x will be a random variable assuming value 1 2 3 4 5 6, right. तो हम रैंडम वेरिएबल की जो नंबर है, वैल्यू है, वो हम एक 1 to 6 में से कोई एक नंबर लेके चलेंगे. ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं. इन द एबो इलस्ट्रेशन द एलिमेंट ऑफ यू आर नंबर एक, राइट. हमने ऊपर जो एलिमेंट इलस्ट्रेशन देखा उसमें जो वैल्यू थी वो नंबर्स में थे, इसलिए हम नंबर्स कहेंगे, राइट. नाउ वी कैन कंसिडर इलस्ट्रेशन विद एलिमेंट ऑफ नॉन नंबरिंग. अब जो हम इलस्ट्रेशन नीचे वाला करने जा रहे हैं वो नॉन नंबरिंग है, मतलब इसमें नंबर्स नहीं होंगे. करें. सपोज अ बॉक्स कंटेन 4 बॉल, 1 रेड बॉल, 1 blue ball, 1 yellow ball and 1 white ball. Sorry, 1 red, 1 yellow, 1 white ball. We do not, sorry, we do not the red ball by R, the blue ball by B, yellow ball by Y and white ball by W, राइट. तो हमने सभी का नाम दे दिया है. ठीक, मतलब नामकरण कर दिया है. अ पर्सन ड्रॉ 3 बॉल, राइट. एक पर्सन ने 3 बॉल वहाँ से ड्रॉन किया at a time of at a time of at random from the box, और randomly 3 बॉल उसने निकाल लिया. द सैम्पल स्पेस एसोसिएट विद दिस एक्सपेरिमेंट इज, राइट. 3 बॉल निकालने के बाद कितनी वे से वो बॉल निकलेगा वो हमारा यहाँ पे यू हमें दे दिया है, राइट. कितनी वे से बॉल निकला, कितने चांसेस से निकलने के वो निकला, राइट. तो रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू वाइट, ब्लू येलो वाइट एंड वाइट येलो रेड. इतने चांसेस हैं निकलने के, मतलब 4 टाइम 1 2 3 4 4 टाइप से 4 वे से उस बॉल को हम वहाँ से निकाल सकते हैं. इससे आगे नहीं होगा, ठीक है, मतलब इससे डिफरेंट नहीं होगा. सपोज फॉर द एलिमेंट ऑफ यू, स्मॉल यू ऑफ यू, then the u bracket small u is the number of white ball is u, then x is equal to सपोज अगर हम वाइट बॉल को x कंसिडर करते हैं, राइट. अगर हम इसमें से हमें वाइट बॉल कंसिडर करना है तो x को हम वाइट बॉल को x कंसिडर करते हैं, तो हमें वाइट बॉल ढूंढना है, राइट. तो वाइट बॉल इन u, देन x इज इक्वल टू आर बी वाई, मतलब इसमें वाइट बॉल नहीं है, मतलब इज इक्वल टू 0. आर डी डब्ल्यू, मतलब इसमें एक वाइट बॉल है, राइट. फिर बी वाई डब्ल्यू एक बॉल है, राइट. डब्ल्यू वाई आर इसमें भी एक है, राइट. देन द रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू ऑफ सेट 0 1. गेटिंग. हमने एक्स को एक्स यू जो है हमने उसको वाइट बॉल को कंसिडर कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो हमें ये मिलेगा और हम उसको 0 1 से लिखेंगे. 0 1 का सेट बनेगा, राइट. Now the outcomes of this sample space are not in number, right. not in number, जो outcomes है वो not in number है, right, मतलब ये वाला. but we associate with them a real number by the experiment, right. but हमने उसको numbers में convert किया 0 1 में करा. getting. So now we can see the discrete random variable. A random variable x which can assume a finite and countable infinite, right. Or a countable infinite number of value in the set of R of real number is called a discrete random variable, right. तो जो भी फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर है उसको हम एज अ सेट ऑफ आर उसको हम इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कह के चलेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल अ birth year of a random selected student. Second, a number of broken egg in a box of 6, in a box of 6 egg, right. Now suppose, now we shall understand the above discrete random variable by some specific example. Suppose there is a one black and two white ball in a box. Suppose the black ball is denoted by B and white ball is denoted by W and W2, ठीक है. दो एक ब्लैक बॉल है, दो वाइट बॉल है, तो ब्लैक बॉल को हमने B नाम दे दिया एंड
टू वाइट बॉल को हमने वाई W1 एंड W2 नाम दिया, राइट। अ पर्सन कैन प्ले अ पर्सन कैन प्ले द फॉलोइंग गेम बाई पेइंग 15 रुपीज़, राइट। एक गेम, एक पर्सन है वो पे कर रहा है 15 रुपीज़ और एक गेम खेल रहा है, राइट। नाउ सी व्हाट इज द गेम। A person playing a game is asked to select two ball randomly with a replacement from the box, right? Replacement करके उसको दो बॉल सिलेक्ट करना है, राइट। ही इज़ पेड एन अमाउंट अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द बॉल सिलेक्टेड बाय देम एज पर एज फॉलोइंग कंडीशन, राइट। और उसको पैसे मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे कलर के हिसाब से, राइट। जो भी कलर के वैल्यू है, मतलब वहाँ पे दो बॉल है, एक वाइट बॉल है, एक वाइट बॉल है, सॉरी दो वाइट बॉल है, एक रेड बॉल है, राइट। उसके हिसाब से जो भी पैसे तय हैं उसको मिलेंगे, राइट। और पैसे कितने हैं वी कैन सी। इफ़ अ वाइट बॉल इज सिलेक्टेड देन 5 रुपीज़ आर पेड फॉर ईच, राइट। अगर दो बॉल सिलेक्ट करने हैं, राइट, यहाँ पे बोल दिया टू बॉल सिलेक्टेड, टू बॉल, राइट। इफ़ ए वाइट बॉल इज सिलेक्टेड तो उसको दोनों वाइट बॉल निकलते हैं तो उसको 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। उसने पे 15 रुपीज़ किया, मतलब 5 रुपीज़ का लॉस। each selected, right, white ball. If a black ball is selected then it will paid by 15 rupees for black ball. अगर फिर ब्लैक बॉल निकलता है तो 15 रुपीज़ उसको पे करेंगे, राइट। तो कुछ गेम इस तरह से हम खेलेंगे, राइट। यहाँ पे दे रखा है हमें, कैटिंग आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या क्या आउटकम्स बनेंगे। तो अगर दो वाइट बॉल निकलते हैं तो 5 रुपीज़, वाइट बॉल को 5 रुपीज़ मिलते हैं तो 5 रुपीज़ वही 10 रुपीज़ मिलेगा उसको। तो उसने गेम खेलने के लिए 15 रुपीज़ पे किया था, 15 रुपीज़ पे किया था, इसकी वजह से उसको 5 रुपीज़ का लॉस होगा, गेटिंग, राइट। तो x इज इक्वल टू, सॉरी x W1 इन द सेम वे जब दोनों विद, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ रह गया, मैं एक बताना रह गया, विदाउट विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब विथ रिप्लेसमेंट है तो जो बॉल हमने निकाला है, जो बॉल हमने निकाला है उसको वापस हम बॉक्स में रख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम क्या निकाला, वाइट बॉल निकाला, जो उसका नाम Y1 W1 था, राइट। W1 W3 एंड B, तीन नाम हमने दिए थे। तो Y1 W1 निकाला, उसने वापस रख दिया। फिर बंदे ने दोबारा वही बॉल निकाल लिया, दोबारा ने वही बॉल निकाल लिया, इसलिए दोनों बार W1 नाम का बॉल निकला, मतलब उसको कितना मिला 15 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ मिला, 15 उसने पे किया, मतलब -5। द सेम वे सेकेंड टाइम उसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट W1 निकाला एंड सेकेंड टाइम W2 निकाला, सेम उसको 5 रुपीज़ का नुकसान हुआ। थर्ड वे ये हो सकता है कि उसने फर्स्ट टाइम W1 निकाला एंड सेकेंड टाइम B1 निकाला, मतलब उसको 5 रुपीज़ के मिले W बॉल के एंड ब्लैक बॉल के 15 रुपीज़, मतलब 20 रुपीज़ मिले, 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। थर्ड, उसने फर्स्ट टाइम W2 निकाला एंड सेकेंड टाइम W1 निकाला, मतलब फिर से 5 रुपीज़ का लॉस। उसके बाद उसने W2 एंड W2, मतलब दोनों टाइम W2 बॉल निकाला, मतलब फिर से 5 रुपीज़ मिले, 10 रुपीज़ मिला उसको, 5 रुपीज़ का लॉस। उसके बाद और एक और, मतलब और भी वे हैं, W2 निकाला, ब्लैक बॉल निकाला तो उसको 20 रुपीज़ मिलेंगे, 5 रुपीज़ का फ़ायदा, राइट। सेम वे ब्लैक बॉल, वाइट बॉल, ब्लैक बॉल, सेकंड वाइट बॉल, या दोनों बार ब्लैक बॉल, राइट, दोनों बार भी ब्लैक बॉल निकल सकता है। अगर बंदे ने ब्लैक बॉल निकाला, वापस रख दिया, फिर वापस ब्लैक बॉल निकाला तो उसको 30 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, मतलब 15 रुपीज़ उसको मिलेगा, गेटिंग। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, करें। तो नेक्स्ट आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन के हिसाब से उसको समझेंगे व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, गेटिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।